Hello students, how are you all? A very good morning to all of you. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Chadeshwar, and welcome back to our English class. So students, we are done with our PT3 syllabus. Let me just tell you the syllabus. We are going to have Unit 6, 7 and 8 from your course book, that is New Pathways, and along with it we are going to have the worksheet for 6, 7 and 8 that is completed. And for grammar we are going to have chapter number 11, 12, 13 and 14 from your adventures with grammar and composition. So as we are done with our course, so we would be starting revision from today onwards. I have kept one chapter half which is of term 2. Okay, chapter number 20 जो मैंने start किया है वो term 2 का है, PT3 का नहीं है, तो वो हम एग्ज़ाम के बाद कंप्लीट करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे चैप्टर दैट इज़ यूनिट 6, सर लॉलीज घोस्ट. आप सबको इसकी स्टोरी तो मालूम ही होगी, बट आई वुड जस्ट लाइक टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो लेट यू नो द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस story. So I request you all to open page number 82 in your textbook and have a look over there. Okay, let's see. The Lolly's boarding school had two types of residents, that is boys and ghost. It was a funny way of saying कि वहाँ पे दो लोग रहते थे, boys और ghost, क्योंकि ये स्कूल काफ़ी पुराना था and it had features that made it absolute paradise for ghost. मतलब ghost के लिए वो जन्नत जैसा था. ठीक है. The huge sunlight blotting trees, that means the sunlight was being blocked by the trees. ट्रीज़ इतने डेंस होते हैं और इतने बड़े होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सनलाइट इज़ नॉट एबल टू रीच टिल द ग्राउंड. द लेंथ्स ऑफ ग्लूमी corridors, that means lights are not so well and so the room is little bit dark or the corridors are dark, only filled by cobweb filtered light that struggled in through the high ventilators offered endless opportunities for the favorite pastimes of the ghosts scaring humans. So this was the description of the corridors. ठीक है कि corridors में light बहुत कम थी और जहाँ पर थी वहाँ पर भी cobwebs होते थे, and that's the reason the light didn't reach that much in the corridors. And what made this even more fun of the ghost was that 750 boys in the boarding were available and willing to be frightened at any time of the day or night. But newcomer Arjun scornfully declared that he did not believe in ghost. That means Arjun, who was a newcomer, he just denied, okay, that there is no ghost. And he also declared that he did not believe in ghosts. This shocked the boys, and what was worse was Arjun mocked the idea of ghost of Sir Lolly. It was the oldest legend in the school that Sir Lolly roamed carrying a blood-stained pillow. When Arjun called the legend the funniest story he had ever heard, the boys planned to teach the newcomer a lesson. सो इट्स अबाउट द बॉय जिसने ऐसा बोला कि वो बिलीव नहीं करता है घोस्ट में. ठीक है. एंड ही ऑल्सो मॉक्ड, दैट मीन्स ही मेड फन ऑफ द आइडिया दैट देर इज़ वन पर्सन नेम्ड सर लॉली जिसका भूत घूमता है और वो भी ब्लड स्टेन पिलो कैरी करके. ठीक है. इसीलिए बाकी बच्चों ने डिसाइड किया कि हमें उसको लेसन टीच करना पड़ेगा. सो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू डू इट. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू see about the plan which was being carried out by Rohan and his friends. They first decided what they are going to do. Okay, so पहले तो उन्होंने पूरा प्लान वर्कआउट किया डिटेल में, उसके बाद उन्होंने सब चीज़ें ढूंढ के रखी कि अभी कैसे डराना है. सो लेट्स सी दैट. ओके. Rohan decided to use his own pillow and managed to get hold on long handled broom, the kind used to clean cobwebs. The first thing what he did was उसने अपना खुद का पिलो लिया और एक लॉन्ग हैंडल ब्रूम, मतलब जो कॉबवेब्स क्लीन करने के लिए यूज़ होते थे पहले के टाइम में, बिकॉज द सीलिंग्स वर क्वाइट हाई, सो दे नीड दैट ब्रूम विच हैड एन एक्स्ट्रा लॉन्ग हैंडल टू क्लीन दैम. सो वो दो चीज़ लेकर आया वो.
In order to make the broom invisible in the dark, he smeared the bamboo handle with damp mud. When no one was around, he practiced how the pillow, supposed to belong to ghost, would appear to float into the dormitory by being attached to the broomstick. Now, अभी ब्रूम को इनविजिबल मतलब ना दिखाई दे, ठीक है, रूम के अंदर डार्क में ना दिखाई दे, उसने इसलिए उसने क्या किया, वो ब्रूम के ऊपर डैम्प मड पूरा रैप कर दिया, मतलब उसके ऊपर लगा दिया ताकि वो दिखे नहीं रात को. एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग जब रूम के अंदर कोई नहीं था. जैसे कि वो पिलो किसको बिलोंग कर रहा है, घोस्ट को बिलोंग कर रहा है, और फ्लोट कर रहा है डॉर्मिटरी में अपने आप. डॉर्मिटरी मीन्स the room which is being shared by 3 to 4 students when they are living in the hostel. Okay, so he started practicing and he was very happy कि ये वाला जो प्लान है वो बहुत अच्छे से काम करने वाला है, और जो अर्जुन है उसके लिए ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होगा, मतलब डरावना होगा. ठीक है. द फाइनल टच वॉज टू इंस्ट्रक्ट द अदर बॉयज इन द डॉर्म हाउ टू बिहेव ऑन द नाइट when the ghostly pillow made its dramatic entry into the dormitory. अभी ये तो ऑब्वियसली प्लान था सबका, है ना, रोहन और उसके फ्रेंड्स का. सो व्हाट दे डिसाइडेड दैट सबको ऐसे बिहेव करना है, प्रिटेंड करना है कि उन्होंने भी ये पिलो सडनली देखा है एंड दे आर ऑल्सो दैट मच टेरिफाइड, मतलब उतने ही डरे हुए हैं जितना अर्जुन डरा हुआ होगा. ठीक है, क्योंकि रूम में बाकी सब बच्चों को पता होगा कि ये जो प्लान है वो कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है. ही इज़ होल्डिंग द पिलो, बट एक्चुअली विल सी व्हाट हैपन्स अहेड. ओके. ऑन द नाइट ऑफ घोस्टली विजिट इट टुक द एक्साइटेड बॉयज अ लॉन्ग टाइम टू फॉल asleep, but Rohan himself was so tired by that morning's grueling practice session for their school's annual cross country. So that night, जिस दिन घोस्टली विजिट होने वाली थी, मतलब उनकी प्लान की हुई, ठीक है, जो रोहन और बाकी सब बॉयज़ ने प्लान की थी वो विजिट होने वाली थी. बट रोहन वॉज सो टायर्ड दैट ही फेल्ट अस्लीप. उसने काफ़ी जल्दी सो गया क्योंकि सुबह में उसकी जो प्रैक्टिस हुई थी एनुअल फंक्शन के लिए, वो एनुअल मैराथन होने वाला था, ठीक है, स्कूल का. उसमें वो जो प्रैक्टिस रहती है भागने की, उसमें वो काफ़ी टायर्ड हो गया था. And he slept right through the faint digital beeping of his alarm clock. मतलब उसका अलार्म बज के वापस बंद हो गया, but he was not able to wake up. When he finally woke with a start, he realized that he had overslept. मतलब सडनली वो उठ गया स्टार्टल होके, ठीक है, और उसको ध्यान में आया कि उसने तो ज़्यादा सो लिया. He shone the torch at his alarm clock and it was already 3 in the morning. मतलब सुबह के 3 बज गए थे ऑलरेडी. ठीक है, उसने मतलब 12-1 बजे उठने का प्लान किया होगा, लेकिन ज़्यादा सो गया बिकॉज क्लॉक तो उसने बंद कर दी, उसको पता ही नहीं चला अलार्म क्लॉक चालू हुई तब. ठीक है. बट इट वॉज स्टिल डार्क एंड डे ब्रेक इन द नीलगिरीज वॉज सेवरल आवर्स अवे. मतलब अभी डार्क था और सुबह होने में भी काफ़ी टाइम था. ही फेल्ट अंडर हिज बेड. येस, द पिलो ही हैड प्रिपेयर्ड वॉज राइट देयर. सो ही डिसाइडेड टू कैरी आउट द प्लान एट दैट टाइम. 3 बजे जब वो उठा तब उसने सोचा कि अभी तो रात बाकी है, सो लेट्स जस्ट कैरी आउट द प्लान. नॉट टू लेट फॉर द घोस्ट टू मेक इट्स अपीयरेंस, ही डिसाइडेड. उसने सोचा कि कोई नहीं, अभी घोस्ट एंट्री करेगा तो भी अच्छा ही है ना, क्योंकि अभी तो रात बाकी है, अभी कहाँ सुबह हो गई है कि सबको पता चलेगा कि किसने किया है ये. सो ही वॉज अबाउट टू टिपटो आउट ऑफ द बेड व्हेन अ फैमिलियर ग्रेटिंग साउंड वार्नड हिम दैट द डॉर्मेटरी डोर वॉज being opened. So he was about to pick up the pillow, जो उसने देखा कि उसके पिलो के नीचे, सॉरी बेड के नीचे है, राइट. वो उठा के वो धीमे धीमे चल के जाने ही वाला था. टिपटो मतलब नॉट टू मेक अ बिट ऑफ साउंड वाइल यू आर वॉकिंग, मतलब अपने टोस पे चल के जाना ताकि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो. ठीक है, वैसे ही आवाज़ आई जैसे कि वो कभी दरवाज़ा खुलता है तो आवाज़ आती है ना, वैसी वाली साउंड आई. And it was felt like somebody opened that door. It was unlike their housemaster to pay such a late visit to the dorm. Obviously अभी आधी रात को 3 बजे थोड़ी ना उनके जो वार्डन होंगे या जो हेड हाउस मास्टर होते हैं, मतलब वो हॉस्टल में रहता है ना, तो वहाँ रहता है एक वार्डन, वो थोड़ी ना अभी आएंगे 3 बजे.
So who did the soft footsteps belong to then? They were, and he was quite surprised कि who is that? राहुल खुद तो सॉरी रोहन तो खुद उधर ही बैठा हुआ है, तो अभी बाहर से कौन आ रहा है? When he discovered the reason for the footsteps, ice prickles of fear crept down his spine. For advancing slowly was into the dormitory was a blood-stained pillow. And as soon as he discovered the reason कि ये footsteps किसके हैं, किसके थे वो फुटस्टेप्स? ब्लड स्टेन्ड पिलो के, ठीक है। जैसे मतलब किसी ने आइस डाल दिया हो आपके अंदर, वैसे फियर पूरे बॉडी के अंदर उसके चली गई थी। एंड ही वॉज वेरी अफ्रेड। होल्डिंग इट वॉज अ hideous pair of ghostly white hands made more terrifying by the fact that they weren't attached to any figure। मतलब जैसे जैसे वो पास में आ रहा था रूम के अंदर, उसको कैसा फील हुआ कि वो जो ब्लड स्टेन पिलो है, राइट, उसको पकड़ने वाले जो हाथ है उसके साथ कोई आदमी है ही नहीं। देयर इज़ नो फिगर, मतलब कोई ह्यूमन बॉडी तो है ही नहीं। देयर वर ओनली हैंड्स विच वर वाइट। ओके, so that was quite terrifying. Rohan's blood turned cold. Obviously he was now turning cold. Okay, he fumbled under his bed again, wondering whether any of the boys had decided to start the trick without him. So Rohan was like, he was trying to look in under his bed again. मतलब वापस उसने इधर उधर देखना चालू किया अपने बेड के नीचे कि शायद उसके अलावा उसके किसी फ्रेंड ने ये ट्रिक स्टार्ट कर दी हो बिना उसके, क्योंकि वो काफ़ी देर सो गया था ना, इसलिए। नो, द पिलो ही हैड प्रिपेयर्ड वॉज स्टिल देयर, which meant that no, it wasn't possible, but there it was, a pillow actually floating forward into the room, held by a bloodless pair of severed hands. Was it actually a ghost? He wondered, his heart thudding wildly and blood pounding in his ears. So when he saw कि उसने जो पिलो प्रिपेयर किया हुआ है वो तो बेड के नीचे ही है, इसका मतलब उसका कोई फ्रेंड ये ट्रिक प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि वहाँ पे तो एक्चुअली एक पिलो फ्लोट कर रहा था, और वो भी किसने पकड़ा हुआ था? अ ब्लडलेस पेयर ऑफ सिवर्ड हैंड्स। मतलब जो हाथ है उसमें से भी खून नहीं गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो वाइट ग्लोव्स पहने हुए हैं। सो उसको ऐसा लगा कि क्या सच्ची में घोस्ट है ये? ही वॉज वंडरिंग एंड हिज हार्ट थडिंग वाइडली and blood pounding in his ears. That means his heart was beating very fast. और उसका जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था वो उसको अपने ईयर्स में ऐसा फील आ रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब एक्चुअली में घोस्ट है वहाँ पे। Ghost, his throat was so dry with fear that his voice emerged only as a feeble whisper. So उसने धीरे से चिल्लाना चालू किया, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर था, है ना, तो वो धीरे से चिल्ला रहा था। फीबल विस्पर मतलब एकदम स्लो आवाज़, ठीक है। देयर इज़ अ गोस्ट, ही ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम अ फ्यू स्लीपी हैड स्टर्ड अवेक। मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे अभी वो उठ गए, और वो ब्लडी पिलो को देख के बॉयज़ ने क्या अज्यूम किया, उन्होंने क्या प्लान किया था पहले, कि जैसे ही ये ट्रिक चालू हो सबको ऐसे प्रिटेंड करना है कि ये सच्ची में है, ठीक है, सच्ची में घोस्ट है। सो everybody assumed that it's Rohan's plan and it was working. So some of them even giggled before following the instructions. मतलब अंदर अंदर हंसना, ठीक है, एक दूसरे को देख के कि अरे ये तो रोहन ही है, और कौन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि रोहन उनके बाजू में ही बैठा हुआ है। दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड श्रीकिंग, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। एंड दे स्टार्टेड प्रिटेंडिंग टू बी अफ्रेड, मतलब ऐसा प्रिटेंड करने लगे कि उनको डर लग रहा है। There was so much confusion that no one noticed that Rohan himself was sitting stiffly in his bed instead of being outside the dormitory. मतलब सब लोग इतना बिजी थे वो देखने में कि किसी ने ये चीज़ नोटिस ही नहीं की कि जो लड़का प्लान वर्कआउट करवाने वाला था वो लड़का भी उनके बाजू में ही बैठा हुआ है, ठीक है, स्टीयरिंग द पिलो विद द लॉन्ग ब्रूम स्टिक. The screams continued for a long time even after the pillow had retreated from the dormitory. मतलब वो पिलो चला गया बाहर, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद, लेकिन सबका चिल्लाना चालू ही रहा.
The boys were having such a fun that it was some time before they remembered the target of the trick and turned their attention to Arjun. To their satisfaction, they saw that his eyes had turned saucer shaped with horror. मतलब उन्होंने ये चीज़ भूल ही गए कि ये ट्रिक एक्चुअली उन्होंने किसके लिए प्लान की थी. फिर सडनली उनको याद आया कि उनका टारगेट कौन था. अर्जुन था. उसको ट्रिक करना था, है ना. तो उनका सडनली उसकी तरफ अटेंशन गया और उन्होंने जब उसको देखा तो दे वर सेटिस्फाइड कि उनका प्लान वर्कआउट किया, क्योंकि अर्जुन की आंखें बड़ी बड़ी सॉसर शेप की हो गई थी. मतलब बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थी उसकी और ऐसा पता चल रहा था कि ही वॉज टेरिफाइड. As for Rohan, the boys were filled with admiration at what they assumed was his superb acting. So, according to the other students, उनको क्या लगा कि रोहन की एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, right? So everybody started admiring him. ठीक है, मतलब उसकी तारीफ करने लगे और ऐसा बोलने लगे कि he has done superb acting. For even the hair in his eyebrows was standing on end in terror, making his bushy brows look like two hairy caterpillars on his forehead. And though he kept rubbing his arms, the goosebumps on them didn't subside till the next day, while the metal braces of his teeth had actually come loose because his teeth had been chattering all night. How were they to know that Dia Prefect wasn't acting and that his fright was totally genuine? So, अभी सबको क्या लग रहा था कि ये चीज़ किसने की है. रोहन ने की है, राइट. लेकिन रोहन को ही पता था कि ये जो ट्रिक है वो खुद प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो आईब्रोज के बाल थे वो भी खड़े हो गए थे और कैसे लग रहे थे, दो हैरी कैटरपिलर्स की तरह, ठीक है, ऑन हिज फोरहेड. एंड ही केप्ट रबिंग हिज आर्म्स, मतलब अपने आर्म्स को रब करने लगा क्योंकि उसके बॉडी पे जो गूजबम्प्स आ गए थे. गूजबम्प्स मीन्स व्हेन यू सडनली फील द chill or the cold, right, of the winter, your hair on your body stands, okay, तो उसको बोलते हैं goosebumps. और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, मतलब वो goosebumps बैठ ही नहीं रहे थे. it didn't come down, कम ही नहीं हुए. it didn't subside, that means वो कम नहीं हुए till the next day. और उसके जो metal braces थे जो उसने दांत में पहने हुए थे, it actually come loose because he kept on chattering all the night. मतलब उसको इतना डर लग रहा था, जैसे हम शिवर करते हैं वैसे ही वो शिवर कर रहा होगा, इसीलिए उसके जो ब्रेसेस है वो लूज हो गए थे. हाउ वर दे टू नो, मतलब जो बाकी के फ्रेंड्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि उनका जो प्रीफेक्ट है, प्रीफेक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, अ स्टूडेंट ऑथोराइज्ड टू एनफोर्स डिसिप्लिन. सो उनको तो पता ही नहीं था कि उनका ये जो फ्रेंड है वो एक्चुअली में एक्टिंग नहीं कर रहा था. ही वॉज जेन्युइनली फ्राइटन्ड, मतलब उसका जो डर था वो जायज़ था, वो प्रिटेंड नहीं था. Poor Rohan, he was haunted by the memory of dreadful visions he had seen. मतलब जो रोहन, poor Rohan मतलब the boy who was going to carry out the plan, okay. Anyway, he didn't do that, but he was the poor guy. He was haunted by the memories of dreadful vision he had seen. मतलब उसको बार बार वही वाले डरावने जो सपने हैं, मतलब वही चीज़ें जो बार बार डरावनी है वही उसको बार बार दिख रही है, ठीक है. हॉन्टेड का मतलब होता है हेलोसिनेटेड, ओके. हाउ घास्टली द ब्लड स्टेन्स हैड बीन एंड दैट स्पूकी पेयर ऑफ हैंड्स, ही शिवर्ड एट द थॉट. मतलब ही वॉज सो अफ्रेड कि उसके बारे में सोच के भी उसको डर लगने लगा था, ठीक है. द स्पूकी पेयर, स्पूकी मीन्स यू कैन से इट्स काइंड ऑफ फ्राइटनिंग, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है नॉर्मली, राइट. आपको हैलोवीन पता होगा शायद कि हैलोवीन में क्या होता है, राइट. लोग ऐसे ही ड्रेसअप करते हैं, भूत या फिर विचेस बनते हैं, राइट. ऐसा वाला मतलब एकदम डरावने वाले जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो पहन के निकलते हैं, ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग, इट वॉज स्पूकी, दैट मीन्स इट वॉज फ्राइटनिंग. ही वॉज शिवरिंग एट द थॉट, मतलब वो दिख नहीं रहा है लेकिन उसने इमेजिन किया तब भी उसको डर लगने लगता है. इनफ टू हैव टर्न्ड हिज हेयर वाइट. He checked the mirror hastily, recalling the story he had made up for Arjun's benefit. His hair was still black, he noted with relief, though the fingers that knotted the special tie prefects wore trembled noticeably. That means
कि उसको इतना डर लग रहा था कि उसको ऐसा लगने लगा कि शायद उसके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन जब उसने मिरर में देखा तो उसको पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके हेयर अभी भी ब्लैक ही है, लेकिन जो उसके फिंगर्स थे ऐसे टाई को बांधने के लिए, दैट वॉज स्टिल ट्रैम्बलिंग, दैट मीन्स इट वॉज शिवरिंग। ठीक है, वो शिवर कर रहे थे अभी भी, और वो सबको दिख रहा था, लेकिन सबको क्या लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा है। The next few days were among the worst in Rohan's life. He was easily startled, and even the familiar sound of Junior's voice stampeding down the wooden corridors or the breakfast gong ringing made him jump in terror. His heart wasn't in anything. वो कैसा हो गया था, एकदम टायर्ड एंड forlorn, मतलब बहुत ज़्यादा सैड। लेकिन as he went to fetch a fresh sports t-shirt from the kit room where all the washed uniforms were stored in the rows of neatly numbered cubby holes. Cubby holes का मतलब small and enclosed space of a compartment, मतलब छोटे छोटे बॉक्स जैसे खुले होते हैं वो, ठीक है, बंद नहीं होते, उसके डोर नहीं होते, लेकिन खुले स्क्वायर बॉक्स जैसे होते हैं, ठीक है, वुडन के, और उसके अंदर सारे धुले हुए यूनिफॉर्म्स स्टोर किए जाते हैं। This was the matron's domain, and she was busy scolding the school धोबी for not washing the clothes properly. मतलब ये जगह किसकी थी, मेट्रन की, जो वहाँ पर ध्यान रखते हैं हॉस्टल में, उनकी, ठीक है। एंड शी वॉज बिजी स्कोल्डिंग अ धोबी, वहाँ पे जो धोबी आता है वो अच्छे से कपड़े नहीं धो रहा है, ऐसा करके उनको डांट रही थी। दिस वाइट शर्ट लुक ब्लूइश ग्रे, दे आर मडी स्ट्रीक्स ऑन दिस शीट्स, एंड दिस पिलो केस हैज़ ह्यूज रेड स्टेन्स ऑन इट। द मेट्रन वॉज कंप्लेनिंग, मतलब मेट्रन अलग अलग कपड़ों के ऊपर जो दाग लगे हुए थे उसके बारे में बता रही थी, और उसमें एक चीज़ क्या थी, पिलो केस थी, जो रेड स्टेन्स थे उसके ऊपर। तो धोबी ने क्या बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, पिलो के ऊपर रेड इंक के इतने बड़े बड़े पैचेस है, मैंने वॉश करने का ट्राई किया बट इट इज़ नॉट गेटिंग ऑफ, व्हाट कैन आई डू, रेड इंक ऑन पिलो केस। अभी ये बात सुन के रोहन फ्रोज हो गया। Was that pillowcase that had been bloodied with red ink to become the ghostly pillow? Every student at Lawley's was expected to mark his name on all the items of clothing so it wouldn't be difficult to trace the pillowcase owner. अभी जैसे ही रोहन ने ये बात सुनी, उसने उसके दिमाग में आया कि मतलब किसी ने पिलो केस के ऊपर रेड इंक डाला था, राइट, उसको घोस्टली पिलो बनाने के लिए, मतलब उसका दिमाग स्ट्राइक हुआ। अभी वहाँ पे जो बोर्डिंग स्कूल है लॉलीज़ में, वहाँ पे एक रूल होता है कि जो भी कपड़े होते हैं उनके ऊपर स्टूडेंट को अपने नाम का मार्किंग करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है, सो दैट जब भी कपड़े धुलने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो वो नाम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कभी कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। Matron seemed to have the same idea, for she snatched the pillowcase from the धोबी and examined it. और क्या नाम लिखा था उसके ऊपर, अर्जुन कृष्ण स्वामी, मतलब वही लड़का जिनको वो लोग डराने वाले थे। Seeing the new boy's name marked on the pillowcase, she was very angry. This boy is getting worse and worse, मतलब ये लड़का धीरे धीरे बिगड़ रहा है। Just the other day there was a complaint that he had taken a pair of white gloves from the band room, the kind that drummers use, and stuffed it with clay from the sculpture room. The clay had dried in the gloves to make them look like a pair of white hands. So उसने और क्या किया था, 2-3 दिन पहले किया होगा, और कंप्लेन आई थी कि उसने किसी के जो ड्रम्स बजाता है ना, वो लोग पहनते इतने लंबे लंबे ग्लव्स यहाँ तक के। सो उसने वहाँ जाके वहाँ किसी के ग्लव्स ले लिए थे बैंड रूम से, ठीक है, जो ड्रमर्स यूज़ करते हैं, और फिर उसके अंदर क्ले स्टफ़ कर दिया, मतलब क्ले भर दिया, ताकि वो जब सूख जाए तो वो क्या लगेगा, सफ़ेद हाथ लगेंगे जिसके साथ बॉडी नहीं है। What's the matter, Rohan? She asked suddenly, noticing the prefect standing there, absolutely still and pale faced. मतलब उसका जो फेस है वो एकदम नीला पड़ गया था, मतलब विदाउट ब्लड जैसे हो जाता है ना, वैसे पेल हो गया था। एंड ही वॉज स्टैंडिंग स्टिल बिकॉज ही वॉज क्वाइट शॉक्ड। उन्होंने सोचा था कि वो लोग अर्जुन को डराएंगे, लेकिन अर्जुन ने इतना सारा कर दिया। और वो जो मेट्रन है उसने क्या पूछा, इट लुक्स लाइक यू हैव सीन अ घोस्ट, मतलब तुम्हारा फेस तो देखो, ऐसा लग रहा है कि भूत देख के आए हो अभी। द मेट्रन एंड द धोबी क्रॉस देमसेल्फ एट द वेरी मेंशन ऑफ द वर्स्ट। सीन अ घोस्ट, रोहन रिपीटेड नम्बली,
while all sorts of angry thoughts went through his mind about what he would like to do to that brat, that cheeky rascal, that pest, that pesky newcomer. Now, these are all slangs, you can say bad words, which are being used for that boy. Brat मतलब बिगड़ा हुआ लड़का, ठीक है. Rascal, pesky, newcomer, all those things are bad words, ठीक है. उसको वो सीन अ घोस्ट जब बोला जाता है तो रोहन रिपीट करता है और उसके दिमाग में सारे गुस्से वाले थॉट्स आने लगते हैं कि वो जो न्यू कमर है उसने हमको ही डराने की कोशिश की. इनफैक्ट he already win the situation because he already won the situation because Rohan was scared. He was so much scared that he was not able to live a normal life for few days. ठीक है. Then he shook his head and grinned ruefully. In a sad or a sorry way. Seen a ghost? Oh no, ma'am. Now I'm quite certain that I haven't. मतलब तब उसने अपना सर हिला के मैडम को आंसर बोला कि नहीं नहीं, आई हैवंट सीन अ घोस्ट, और अब तो मैं काफ़ी सर्टन हूँ, मतलब आई एम श्योर दैट आई हैवंट सीन अ घोस्ट. नाउ दैट इज. And he burst out laughing. His laughter was such a loud mixture of relief and hysteria that the matron and the dhobi looked at one another, puzzled, and then crossed themselves again. So, रोहन वॉज लाफिंग एट हिमसेल्फ. वाई? क्योंकि उसने घोस्ट एक्चुअली में देखा ही नहीं था, वो तो ट्रिक थी अर्जुन की, है ना. तो ही वॉज काइंड ऑफ लाफिंग इन सडन इट वॉज काइंड ऑफ सडन रिएक्शन. ठीक है, मतलब पता चलना कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो एक्चुअली में है ही नहीं, है ना. तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है. तो वही रिलीफ की वजह से वो ऐसे हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से कि जो मेट्रन और धोबी है वो एक दूसरे को देख रहे थे कि व्हाट हैपन टू दिस boy, and they again started talking with each other. So students, I hope that you are clear with this story. We would be doing the revision of exercises in the next video. Take care and see you soon, and please study properly, students, for the exam.